put this for other people. Okay. So आज का मैंने एक चीज और सोचा था. I think we are talking about startups so much. So I think there is a personality also, a kind of personality that shouldn't maybe think about startup at all, or maybe a kind of personality who is more of a founder. Another kind might be more of a co-founder. Another kind might be more like the core team, and so on, right? So maybe we can talk a bit about these personalities कि किस तरह के personality वाले लोग founder तो नहीं बन सकते या बन सकते हैं either way. So maybe we can do a bit of a brainstorming, and we can maybe start from Atul sir only. आप बताइए सर किस तरह का पर्सनालिटी स्टार्टअप कर ही नहीं पाएगा कभी. ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. जो लगता है और रियलिटी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. लगता है कि जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग है, कोई स्पेशली यंग कॉलेज किड्स या आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप बहुत कूल हो गया, सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं. बट ज्यादातर जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हुए हैं, लेजेंडरी स्टार्टअप्स, वो ज्यादातर लोगों ने 50s और 60s में स्टार्ट किया था. तो उसके पीछे रीजन ये है ना कि बाय दैट टाइम दे हैड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे हैड द एक्सपीरियंस एंड दे कैन टेक दैट रिस्क. किसी भी स्टार्टअप को करने के लिए इनिशियली यू हैव दोस रिलेशनशिप, इनिशियल क्लाइंट्स लाने के लिए. लेकिन अब वो चेंज हो गया. वो 50-60s पुराना मॉडल था. इन द न्यू वर्ल्ड व्हेन एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, एंड एक स्कूल का बच्चा भी हो सकता है कि जैसे कि हमारे ग्रुप में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ नमन का, कि वो बैठे बैठे कलकत्ता से MIT के प्रोफेसर से टच में हो सकता है, और है, और बहुत सारे लोग कर सकते हैं काम. तो दैट गैप ऑफ ज्योग्राफी, द गैप ऑफ टाइम, एज, वो सारे जो बैरियर्स है थोड़े से खत्म हो गए. बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ और एज के साथ कुछ चीजें आती हैं जो कि आपको यूथ में नहीं मिलेगा. कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा एक्सपोजर होगा. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. Okay. Mr. Shyama Prasad, I think I heard you speaking 2 days, last 2 to 3 days, I think. But today we are maybe, I'm back. All right. Yeah, sorry, yeah, now. मैं सुनता हूँ आप लोगों का बात, बहुत दिल से सुनता हूँ एक्चुअली. बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ. तो आपके हिसाब से कैसे लोग स्टार्टअप या बिजनेस नहीं कर पाएंगे? What do you think? इसमें देखिए, डेफिनेटली एज एक फैक्टर होता है. बट इफ यू रिकॉल KFC फाउंडर, Colonel Sanders, he started his business at the age of 64. This Dhirubhai Ambani, he was trying from long time, but his actual growth took place after 50s. So is tarah ka to, and as Atul said rightly, and now there are many young entrepreneurs like Facebook में जैसे अपना मार्क जो भी आपने किया है, तो he has come very young at age, तो एज एक फैक्टर नहीं हो सकता है. It's the circumstances and the people's mental get-up. Whether he is young or he is old doesn't matter. तो आज कई सारे young people से भी मिलता हूँ, they are still looking for doing a job. And again, I meet some people who are really bright and they want to do something in the entrepreneurship world. Similarly, जो अभी uncertainty आ रहा है, I don't think people can retire any time. Retirement is out of question. The kind of responsibility people have and the lifestyle they are leading, whoever in whatever position. So even becoming a successful, people will not retire, so easily, and they will try to do something. So in my opinion, it's a personality trait rather than an age. So that's what I feel. So what kind of personality? Like personality is like personality is risk taking.
risk taking. People, like, I can give you my example actually. Though I have worked in the corporate, but constantly I took risks, tremendous risk, even being in the corporates. Yeah. So of course I was never an entrepreneur. I was never, I didn't, I was not born in a business family. So I never had that, but I learned on the way. So similarly, I see again there are many colleagues who takes a very safe path, and they're also leading a good life. It's not that they are doing something wrong. It's fine. So it's a trait. So whoever is having risk-taking abilities, and like these days, one thing is important, that in few years, I was reading a quote somewhere. In few years from now, uh, people will not be called illiterate that they cannot read or write. They will be called illiterate if they are not willing to relearn and readjust with the new situations. So that sort of personality will be successful in starting up anytime, who are flexible enough and who are willing to unlearn and again relearn, this sort of personalities. And अभी जो world का situation हो रहा है, I think it is changing so fast. Means since February, March, the world becomes so different. I don't know what's different very fast. Yeah, Yes, Atul sir, absolutely. आप कुछ बोल रहे थे, and then Neeraj can also speak. Yeah. So what I agree with what sir said. The only thing I would say कि adaptation is a very important point. कि कौन कितना adapt करता है. एक और word मुझे किसी ने बताया था बहुत साल पहले, मैं भूल गया नाम उनका. इंट्राप्रेन्योर एक वर्ड है कि आप किसी बहुत मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, आप गूगल में काम कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो या इन्फोसिस टीसीएस में, बट विद इन दैट कंपनी कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन साथ में उनके बॉसेस को पता है और सारे कलीग्स को पता है कि कोई भी नया कुछ करना है ना तो वो अमित कुमार को दे दो या वो अजय कुमार को दे दो, क्योंकि वो स्टार्टअप माइंडसेट का है. वो खटाक से नए वेंचर को लेगा. और जो स्टार्टअप के लिए जो चीजें होती है कि जल्दी जल्दी टीम जुटाना, रिसोर्सेज जुटाना, फंडिंग जुटाना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको श्याम जी कैन एग्री विद दैट कि आपको बहुत सारा सेल्स पिच मारना पड़ता है किसी प्रोजेक्ट के लिए. आप रिलायंस हो चाहे, तो उस तरह के माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो कंपनी में काम करते से भी एंटरप्रेन्योर के तरह में बिहेव करते हैं और कभी कभी राइट टाइम पे वो फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. बट वही एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर ऑफ अ माइंडसेट एंड एटीट्यूड, not about an age and qualification. Yeah, absolutely. Yes, Neeraj, please comment. हाँ, so विशाल जी, मैं कुछ टाइम पहले है ना किसी इंडिया में आजकल काफी कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हुए हैं पिछले 10-15 साल में. तो उन्हीं में से एक जिन्होंने वो किया है सब, उनमें से ही एक आदमी को मैं सुन रहा था, एंड ही वाज गिविंग लेक्चर टू कॉलेज स्टूडेंट्स समवेयर. तो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा खड़े होके स्टूडेंट्स में से कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मेरा बहुत मन है कुछ करने का, और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फैमिली को कैसे मनाऊं, और ये ना बोल के कि मैं कोई अच्छा कॉलेज था, आईआईटी टाइप कोई कॉलेज था, कि मैं प्लेसमेंट ना लेके आई विल बी डूइंग समथिंग ऑन माय ओन, तो मैं इसके लिए अपने फादर को कैसे मनाऊंगा. तो उसने तुरंत स्टेज से बोला उसी टाइम, बेटा आप बैठ जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा. और थोड़ी देर बाद एक और क्वेश्चन आया कि सर आपने जब उस पर्टिकुलर आदमी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने 28 साल की उम्र में स्टार्टअप किया था, जो कि पहला सक्सेसफुल उसका काफी पॉपुलर हुआ है. तो उसने कहा कि सर जब आपने किया तो वर यू मैरिड, किसी ने कहा. तो उसने भी तुरंत उसको वही जवाब दिया कि बेटा बैठ जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अराउंड दिस इज कि परसिवरेंस, लगातार आपका कंसिस्टेंट एफर्ट, कि मैं गिरूंगा लेकिन मैं उठूंगा, मैं आज फेल होऊंगा और लेकिन मैं दोबारा से मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, और कंटिन्यूअस थर्स्ट टू लर्न न्यू थिंग्स इज द बेस्ट क्वालिटी यू कैन लुक फॉर इन अ फाउंडर, को फाउंडर और व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर. तो वो जो एक
फाइटर मोड होता है ना, फाइटर वो वाला मोड नहीं, एग्रेशन वाला मोड नहीं, फाइटर मोड इन अ वे कि हाँ आपने सुना, अपना क्रिटिसिज्म भी सुना या आपका कुछ फेलियर भी हुआ, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत है कि अगली सुबह आके आप उसी जीएल के साथ दोबारा काम कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज है। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, सब चीजें मेरे को लगता है सेकेंडरी है। पहला चीज है कि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा और एक आपके अंदर जुझारूपन। ये दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो आपको कहीं पे भी कामयाब बना सकते हैं। और अभी कोविड एरा में स्पेशली अगर मैं बात करूं, चीजें जो है ना 10 गुना तेजी से हो रही हैं। अगर कोई फेल भी होगा ना तो वो 10 गुना तेजी से गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि जमीन में भी 10 फीट गहरा खड्डा होगा, उसके अंदर गिरेगा। और कोई उठेगा तो वो भी 10 गुना तेजी से उठेगा। थिंग्स हैव बिकम सो फास्ट, यू कांट इमेजिन कि आप कितना जल्दी स्केल अप कर सकते हैं या आप कितना जल्दी फेल कर सकते हैं। सो पीपल हैव टू लर्न द न्यू ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड and accordingly have to take decisions. Yes, Mr. Amesh, please comment. Yeah, whatever you want to say. So I think the inputs are very valuable coming from a lot of experience. जिन्होंने भी अभी तक कहा है इनका पूरा काफी एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट हो रहा है. What I would say is, according to me, a founder, अगर हम लोग specific role से बात करें, फाउंडर या co-founder, इनका core role है to tell a story, to share that vision. If they are very good storytellers, if they can narrate that vision and take that vision to the first 10 people in the company, eventually these 10 people are going to be the face of a bigger company, अगर वो success होता है तो. So core element जो मैं startup के founder में देखता हूँ कि ये आदमी successful क्यों है, like be it any startup, उसने पहले 10 आदमी को बहुत अच्छे से उसका विजन समझाया हुआ, वो बहुत अच्छे से उसने एक पाथ डिसाइड किया हुआ है और वो पाथ शेयर किया हुआ है. नाउ लाइक नीरज जी सेड दैट ऑल दीज आर टूल्स, लाइक बाकी जो चीजें हैं कि एआई है वगैरह, टेक्नोलॉजी है, एनी ऑफ दीज थिंग्स आर टूल्स. So they come and go, they'll come as you are at next stage of a startup, you'll have to evolve further. That is part of process. But imagine if the co-founder or the founder were visionless, or even if they had vision and they were not able to share the vision. So, independent of whatever time, the dynamics still remain the same. Your sharing of the vision can be best done if you're a very good storyteller. So, that storytelling is the key element for me in when I see a very good founder. I mean, that company automatically has a better chance to have a successful start. That's about it. विशाल, 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा प्रीवियस डिस्कशन के टर्म्स में. एक तो नीरज ने जो बोला कि लगे रहो मुन्ना भाई, गिव अप नहीं करना है. तो एक बहुत बड़े यूएस के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक 30th प्रेसिडेंट, कैल्विन कोलिज, उनका कोट में बार बार यूज करता हूँ. उनका कोट था उसी चीज पे, परसिवियरेंस पे. उन्होंने कहा कि परसिस्टेंस और परसिवियरेंस है ना, लगे रहोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है. बहुत बड़े बड़े जीनियस लोग फेल हुए लाइफ में, बहुत बड़े वेल्दी लोग, स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग फेल हुए, बट सक्सेसफुल वही हुआ है जो परसिवियर किया. और बहुत सारे जो जितने भी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी जानते हैं हम लोग, सक्सेस होने के बाद वो फेमस होते हैं, बट उसके पहले बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गए, बट वो गिव अप नहीं करते. परसिस्टेंस, परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वांटेड टू हाईलाइट. Yeah, that's good. ठीक है. ये स्टोरी टेलिंग, आई थिंक इट्स वन गुड, इट कम्स अंडर कम्युनिकेशन काइंड ऑफ. एंड एक और स्टोरी टेलिंग पे बोलना था बिल के, स्टीव जॉब्स क्या था, ही वाज अ गुड स्टोरी टेलर. जितने बड़े बड़े लोग हैं, इज अ स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर कहानी सुनाई. एप्पल तो बनाया स्टीव वॉजनियाक ने, जो टेक्निकल जो जिसको आता था, जिसने पहला मैकिंटॉश या कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर बनाया एप्पल, वो स्टीव वॉजनियाक था. और स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल को एप्पल बनाया, तो क्यों था? बिकॉज स्टीव जॉब्स वाज अ गुड स्टोरी टेलर. तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट पॉइंट. Yeah, that's let's hear from some college students. Aman, are you listening? You are here? Sorry. Yes, Aman. Yes, Aman. तुम्हारे हिसाब से बताओ. I think you are also trying entrepreneurship and
other things, right? Right. So So agree so disagree ये सब चीजों से क्या तुम में क्या है जो बाकियों में नहीं है या whatever other way around? the first thing is that I find the problem in entrepreneurship is that the idea that the first आपको तो आइडिया आने चाहिए उस टाइप से लाइक आपको दिन भर में काफी सारे आइडियाज आते रहते हैं लाइक मेरा तो ये चलते रहता है कि कभी ये आइडिया आता है, मुझे लगता है कभी सब्जी वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सही में मतलब सोशल प्रॉब्लम है, ये इस पे स्टार्टअप हो सकता है। कल जैसे आपसे रात में बात कर रहा था, मुझे लगा हाँ इस पे कुछ स्टार्टअप हो सकता है, तो इस तरह काफी सारे चलते रहते हैं। बट जब आप स्टार्ट करने जाते हो ना उस चीज को, ठीक है, तब लगता है अच्छा नहीं ये तो अभी ऐसा है, अभी इसमें काफी सारी चीजें की जरूरत है, ठीक है। तो फिर आप उसमें जब रिसर्च करोगे तब आपको फिर उसमें फिर मन नहीं लगता, फिर वो भी लगता है कि नहीं नहीं कि ये तो फिर मेरे बस का चीज ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें होती है, बट उसके बाद जो ये सारी चीजों से एक फोकस कर लेता है कि हाँ यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइक फेसबुक ने या फिर जो भी ने जैसे सर लोगों ने बात किया कि हाँ एक उन्होंने पता किया कि हाँ एक ये प्रॉब्लम है, इसी पे मुझे काम करना है। जब आपका वो हो जाता है ना, एक विजन एक क्लियर हो जाता है, तब आप ज्यादा एक अच्छा से सुटेबल कार्य काम कर सकते हो चीज को। फिर उसके साथ आपसे काफी लोग जुड़ते जाएंगे जो आपको उसके बारे में बताते जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज विजन और आइडिया, दैट जो सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत होती है। ओके Okay. मैं विजन का अमन ने बहुत अच्छा बोला है। आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट हियर। अमन अभी है क्या, कुछ आगे बोलना है क्या? नहीं नहीं, he's mute. Yeah, you can Okay, continue. Yeah. अगेन मैं एक और आदमी की बात बताता हूँ, मैंने सुना उसे। ओयो का सबने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर है आज के टाइम पे। मतलब Here's अभी my चलो idea, अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, रितेश अग्रवाल। तो Right. उसने वो कहीं तो कुछ अपना पता नहीं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं है कि कहाँ पे मतलब क्या कर रहा था जब उसने बात बताई। ओयो वाज रियली स्ट्रगलिंग इन द बिगनिंग। जब स्टार्टिंग में 2014 जनवरी फरवरी में जब स्टार्ट किया, तो वहां पे अब पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, बहुत से साथ में काम जो मतलब वो कर रहे थे उसी तरह का काम करने वाले काफी लोग आ गए थे मार्केट में। एंड वन बिग नेम वाज जो रूम्स। मैंने जो रूम से बुकिंग लिया, मुझे अच्छे से याद है, दे वर फॉलोइंग द सिमिलर मॉडल। तो रितेश अग्रवाल ने बताया कि जो मैंने जो कुछ नया बनाया ना दिन में, मैं शाम को देखूंगा जो रूम ने कॉपी कर लिया है। जो मैं कर रहा हूँ, they were doing the same exact thing and somewhat in a better way than us. And I was really tensed about it कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तो जो अभी मतलब बात की अमन ने कि आइडिया, ये वो आइडिया इतना कोई भयंकर नहीं था। ओयो का भी बहुत सिंपल सा आइडिया था, ठीक है। तो सिंपल आइडिया को भी कैसे आप बड़ा बना सकते हैं, सिर्फ उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी है ये। तो रितेश अग्रवाल ने क्या किया, टेंशन चल रही थी, कंपटीशन बहुत टफ हो रहा था, दे वर बर्निंग मनी लाइक एनीथिंग। तो रितेश अग्रवाल ने संडे के दिन सुबह सबको 10 बजे, जितनी भी लीडरशिप थी उसके पास उस टाइम 20 30 40 लोग, सबको बोला 10 बजे राइट ऑफिस में आना है। सब पहुंचे। तो दे वर इन एक्सपेंशन मोड एट दैट टाइम। उसने मीटिंग रूम में खड़े होकर बोला, ओके दिल्ली में नेक्स्ट मंथ में हम कितने नए होटल्स ऐड करने जा रहे हैं अपने साथ। किसी ने कहा 15, किसी ने कहा 16। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो सुपर सेल्समैन है टीम का, उसने कहा मैं 26 करके दिखाऊंगा। रितेश ने कहा ओके हमें 100 करना है। सबने कहा क्या बात कर रहा है ये 20 साल का लड़का एंटरप्रेन्योर बन के, अब इसका दिमाग खराब हो गया है। वन मोर एंटरप्रेन्योर हैज गॉन बॉन्कर्स। उसने कहा हमें 100 करना है, नाउ आई एम पुटिंग अप द स्ट्रेटजी फॉर इट कि वो कैसे होगा। एंड ही टुक अ 2 hour सेशन। उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि वी विल हैव 10 पिकअप वैन्स, दीज आर द 10 डिफरेंट एरियाज मार्क्ड अप इन द दिल्ली एज पर द रीजन। और हर एक पिकअप वैन में जो भी हमारा स्टैंडर्डाइजेशन के जो भी आइटम्स होते हैं किसी होटल के लिए, लोगो से लेके चद्दर से लेके जो भी, वो उस वैन में होंगे। आप होटल के पास जाइए, तुरंत उनसे बात कीजिए, उनको सारा स्ट्रेटजी समझाइए। 3 दिन में वो होटल ऑनलाइन होना चाहिए, वहां पे सामान डाल दो उसके घर के, उसके दरवाजे के बाहर जाके। And the result was after 1 month 137 hotels were done online with Oyo। तो जो एक विजन होता है ना, और एक जो ये डिटैच्ड फाइटर का जो एक मोड होता है किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर के लिए, डिटैच्ड वॉरियर आई वुड से, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है ना, मेरे को जो लगता है, आपने एक अपना तरीका ढूंढ लिया है कि मेरा काम करने का तरीका ये है।
which I have to repeat again and again. और वो आप जब भी समझ पाएंगे जब आप एक बिल्कुल हर लेवल पे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा, भले ही वो फ्रंट डेस्क से लेके और बिल्कुल फील्ड लेवल पे जाके पिच करने से लेके सब चीजें, आप तभी उस पूरे प्रोसेस को एंड टू एंड समझ सकते हैं. उस प्रोसेस को जो आपने डेवलप किया है, प्ले बुकाइजेशन ऑफ दैट प्रोसेस, कि उसका आपने ऐसा प्ले बुक बना दिया है कि ये 4 चीजें जाके बोलना है, इसके बाद ये करना है, और एक ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसी तरह से हर जगह एग्जीक्यूट होगा. अगर आपने वो प्ले बुक बना के उस प्रोसेस को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वही वो चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है. लोग बहुत लंबे टाइम तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनोवेट मत कीजिए, आप इनोवेट कीजिए, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको आप ऑलरेडी सक्सेसफुली कई जगह इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसको विद इन द टीम प्रॉपर तरीके से प्ले बुक की तरह बनाइए, अपने सारे लोगों को उसको ऑन बोर्ड कीजिए कि ये एक तरीका है जो हमें हर जगह लगाना है. अगर वो करने में आप कामयाब रहते हैं तो एक्सपेंशन भी होता है, और एक वो जो टीम स्पिरिट और वो सारी चीजें होती है. और बोर्ड रूम में जब फाउंडर घुसे ना, तो लगना चाहिए कि हाँ, ये कुछ अलग बोलता है या ये कुछ अलग सोचता है. दैट मेक्स अ डिफरेंस. Yes, Aman, you want to say something, please? No, sir, I think some very great points added by Anil sir. I'm really inspired and really motivated now. Okay. Thank you, sir. Janta Creative, are you? Yeah. Maybe introduce yourself. I think you have been here few times, maybe, right? Yes, sir. Deepak Kaushik, co-founder of Growing Bharat. Okay, Growing And Bharat. Yes, sir. आप क्या, you have any, I mean, comment about startup, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? स्टार्टअप सर जो होता है वो कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन उसमें जो विजन, जो अभी सर बात हो रही थी, कि विजन के साथ साथ उस पर जो माइंड सेट होना चाहिए कि किस तरफ हमें जाना है, क्या करना है. क्योंकि बहुत तरीके के जो है आपको स्टार्टअप्स में जो है आइडिया आ सकते हैं. आप जहाँ भी बैठे हैं, हर तरीके का समस्या ही समस्या है. उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो है आपको, जिसमें स्पेशलाइज जो है कोई भी फील्ड है, क्योंकि आदमी जो है होता है वो हर बात उसको लगता है कि सब्जी भी है उसमें भी कर सकता है, मेडिकल है उसमें भी कर सकता है, और पीपी किट जो बन रहा है उसमें भी. ये होना चाहिए कि आदमी को जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट के साथ उसके काम का जो पावर हो, ताकि जल्द उसको सक्सेस मिल सके, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. सही बात है. आई थिंक हमने एक इकिगाई का बात किया था, जिसमें सारे चीजें मिलते हैं, लाइक ऐसी चीज जो सबको चाहिए, ऐसी चीज जो आपको, जिसमें आपको भी इंटरेस्ट है, ऐसी चीज जिसके लिए लोग थोड़ा पे करें, इम्पैक्ट क्रिएट करें. 4-5 चीजें उसमें, सारे का इंटरसेक्शन इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आपके जीवन का क्या पर्पस है वो निकालता है. ऑब्वियसली मे बी विद कोविड एंड ऑल इस तरह का कुछ सुनामी टाइप आ जाए तो वो चेंज करना होता है थोड़ा सा, आई गेस. आप क्या बोलते हैं श्यामा सर? कभी कभी आई थिंक मैंने भी जैसे 2-2.5 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टकअप भी हो गया था. ये कोविड ने कहीं से किया, स्टकअप नहीं हो सकते आप. ये नहीं है कि मेरे को इसी लड़की से प्यार है, इसी से शादी करूंगा. आपको ये रखना है कि शादी करना है, किसी से भी हो जाए. नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि वी स्टार्टेड द डिस्कशन व्हेन आई एंटर्ड, नो, वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम का बात चल रहा था. then the issue came on Ikigai. I said, so अभी the situation is such that Ikigai ज्यादा ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, you know, for next 2 years. अभी थोड़ा Ikigai को रखना होगा. ये भी एक एकदम डीपर वो सर्कल में मत कंडीशंस होना चाहिए. या Ikigai रखना चाहिए, but not to find that particular, you know, a small section. Maybe you have to widen it a little bit, because so that's what yeah, बहुत अच्छा. This is a, but अभी, you know, the way the situation today is, all this whatever we discussed, that what will be the traits of a particular startups, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. अभी इस टाइम में, जैसे हम बॉम्बे में नौकरी करते थे, तो मैंने बोला अरे यार, ये दुबई लोग कैसे पहुंच जाता है, हमारा पगार तो इतना कम है, and they are earning so much.
and I see that their competence level is even lower. तो एक आदमी ने मेरे को बोला था, तो तेरे को कूदी मारना आता है? मैं बोला मतलब मैं बंगाल से हूँ यार. तो बोला you have to jump into it, okay? Jump and learn on the way. Because कल जो डिस्कशन हो रही थी that अभी जो ट्रेंड है ना, पहले लोग सोचते थे कि भाई we have to be the smartest people will be a doctor or an engineer. Then ये आया कि नहीं, उसको लॉयर भी होना चाहिए. फिर थर्ड में आता था कि भाई चलो उसको गवर्नमेंट जॉब, फोर्थ में आता था प्राइवेट जॉब. ये सब चेंज हो गया अभी जो स्टूपिड पीपल ओनली गो इनटू द मेडिकल प्रोफेशन टुडे. इतना मेहनत करना पड़ता है उनको, एंड द काइंड ऑफ रिवॉर्ड दे गेट इज रियली नॉट वर्थ. Because I have a lot of doctors in my family, so I know it. So now these entrepreneurs, the startups, the brightest of the bright people are today joining the startups. They're starting business, and that should be the way. Means today, when I see there are so many entrepreneurs today, honestly, and they are doing quite okay. Means whatever their competency level and all those things were there, but this is based on not on their academic qualifications or what college they passed out, what university they belong to. It doesn't matter, honestly. It really matters, like we discussed today about perseverance and then risk taking we are talking about. So all these traits together, if you have little bit and somebody, they can jump into it, and many a times people are not sometimes self-motivated. If they get motivation from others also, that is also good enough. Means they should, if they're not self-motivated, maybe they can get help from others to remain motivated. That is also a possibility. So मेरे को लगता है it is not about age factor, not about education, not about your pedigree, whatever you have. It really doesn't matter. As long as you have this will to plunge into this kind of life, that where there will be little uncertainty, where there will be some sort of risk taking, etc., and you are fine with that. If you are fine with that okay, sometime maybe it will not go as per whatever we have planned. So then I think startups should not be a problem actually. And as Atul was mentioning yesterday, I have always praised the entrepreneurial quality of Indians. They're much better than any other people of the world. Today I have seen the Chinese entrepreneurs, I've seen the Jewish entrepreneurs, but the software what Indian entrepreneurs has, nobody has it, honestly. Means, or this will do much better today. जैसे हम लोग बोल रहे थे अभी कि भाई इतना ये नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है. आज एक इंडियन के पास इतना सारे एम्यूनिशंस है फ्रॉम आवर लिटरेचर, फ्रॉम आवर whatever the wisdom our ancestors passed on to us, that is good enough to sustain ourselves, which other people do not have. Today the Chinese guys, they do not have this software. वो सोच ही नहीं सकता इस तरह से. Similarly, many I will say that rest of the world, except few countries in Europe, they are not having this dimension in their life. Today US is following this Indian wisdom to a great extent, and sometimes I feel that they are surpassing even the Indians who are living in India. So ये सब जो है अभी Indians के पास available, I think that will be good enough in this uncertain time to maneuver properly. बहुत ज्यादा बोल के लगता है. नहीं कोई बात नहीं. I think one good nature has to be a good listener for all, right? Yeah. So that's what. So coming to this motivation, I think a lot of people get motivated and maybe over motivated and like super motivated for 1 day, 2 day, 1 week. उसके बाद क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल डिके हो जाता है मोटिवेशन का. यस अतुल सर, आप यू वांट टू कंप्लीट समथिंग प्लीज. हाँ, तो इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि जे लोग बड़े बड़े जो सक्सेसफुल जो हुए हैं,
तो उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, बहुत बार फेल हुए हैं और फिर भी गिव अप नहीं किए। तो परसिस्टेंस के पॉइंट पे है कि इतनी ज्यादा चीज आप फेल होते हैं ना, तो एवरी फेलियर इज अ एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो आदमी फेल नहीं हुआ है ना, तो हम लोग जो इंडियन स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, जो इंडियन सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे थे अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में, क्यों तो हम इंडियंस लोग को फेलियर्स की, अनसर्टिनिटी की बचपन से आदत है। बचपन में भी जो इंडिया में चूंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो हर एक इंडियन स्टूडेंट को, अभी आजकल मैं एक टीवी सीरियल देख रहा था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एक नया आया है, ठीक है, तो एक स्कूल में एडमिशन के लिए फाइट मारना पड़ता है, कॉलेज में एडमिशन के लिए फाइट मारना पड़ता है, उसके बाद फिर इंटर्नशिप के लिए फाइट, जॉब के लिए फाइट, फिर शादी के लिए फाइट। मतलब हर कदम कदम पे इंडिया में उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आबादी 1.37 बिलियन पॉपुलेशन है और स्पेस काफी कम है। तो हम लोग को एक दूसरे को धक्का मुक्की, जैसे कैसे बॉम्बे में जो आदमी बॉम्बे के लोकल पे चढ़ लिया, उसको बाकी दुनिया के कहीं भी लोकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो उसको लगेगा कितना आराम से सीट मिल जाती है। बॉम्बे के लोकल में घुसना, मतलब कि बॉम्बे का जो मैं नाम भूल रहा हूँ, ओल्ड लाइन जो है, जो ओल्ड लाइन है, बॉम्बे ओल्ड लाइन में किसी को चर्च गेट से विरार तक जाना है, तो विरार वाली जो लेडीज होती हैं, मैंने कहानियां सुनी है, एक दो बार चढ़ा हूँ कभी, तो वो धक्का मार के कैसे करके घुस जाएंगी और कोई और उनके में घुसेगा तो उसको भगा देंगी। तो थोड़ा सा ग्रिट, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, परसिस्टेंस, सारे वर्ड सिमिलर है। मतलब कि स्ट्रगल करने की जो इंडिया में जो आदत आ जाती है ना, तो चाहे वो मैंने एक दो एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि सुंदर पिचाई और सत्या नडेला को तो हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो गए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले, बट इन लोगों ने इंडिया में बहुत स्ट्रगल किया होगा अपने हैदराबाद में या जहाँ पे भी, अपने कॉलेज के एडमिशन के समय में, स्कूल के एडमिशन के समय में, और उनको वहां पे भी देखा है कि इतने सारे तेज लोगों के बीच में तो थे भी, दे कुड नॉट इवन, मेनी ऑफ देम कुड नॉट इवन क्लियर दोस इंडिया में जो ड्रीम होता है आईआईटी क्लियर करने का, आईआईएम का, तो उन्होंने यूएस में एमएस किया, आसान है, पीएमबी के, फिर यहाँ आके अपॉर्चुनिटी ज्यादा, तो फिर सक्सेस हुए, एंड देन दे कमिंग बैक टू इंडिया। तो वो इंडिया के बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि आप इंडिया में हो तो आप बहुत हार्ड इन्वायरमेंट में, जो पहले मैंने प्रेजेंटेशन में दिया था वन ऑफ द टॉक्स में, कि कॉकरोच, इंडिया में हम लोग को कॉकरोच बनना पड़ता है जीने के लिए, और बाकी जगह पे आप क्या कहते हैं, पपी और कैट और बन सकते हो, लेकिन इंडिया में कॉकरोच नहीं बनोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। दैट इज द सीक्रेट, क्यों स्टार्टअप्स सक्सेस होते हैं और नहीं होते हैं। कॉकरोच वाला माइंडसेट चाहिए होता है कि कुछ भी हो जाए, मिलियंस ऑफ सालों तक कॉकरोच आज भी जिंदा है और बाकी लोग जिंदा नहीं, बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। या सो यस, यू वांट टू से दीपक, राइट? जनता क्रिएटिव जो आपका नाम है। हाँ सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस प्लीज। इसमें जो सर ने बताया कि अभी जो समय है, इसमें जो आप कहीं भी अपना जो है छलांग लगा सकते हैं। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ बोलिए फिर से। हाँ, तो इसमें सर मुझे जो लगता है कि जो स्टार्टअप्स हो रहा है, इन स्टार्टअप्स में अगर हम अपने फील्ड से अदर फील्ड में जा रहे हैं, उसमें दिक्कत होता है बहुत सारी चीजों का, और लेस टाइम में जो है किसी भी स्टार्टअप्स को बूम करना जो है, अगर फील्ड अलग होता है तो उसमें हमें बहुत तकलीफ होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है जो है। उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने में जो है हमें तो गाइड मिलते हैं, इन्वेस्टर मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत समय पार हो जाता है। समय की बर्बादी जो है उस एंटरप्रेन्योर को जो है डिमोटिवेट कर देता है। इसलिए जो है मुझे तो लगता है कि जो भी फील्ड आपको अगर अच्छा लग रहा है, उस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें आप स्पेशलाइज हैं, तो उसमें आपको कोई भी चांस जो है सक्सेस का जो है बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छा सक्सेस आपको मिल सकता है। Yes, Amish, you want to add something, please? आई थिंक काफी हमने ये सारी बातें की कि क्या होना चाहिए। आई थिंक एक चीज
जो नहीं होनी चाहिए, ये मैं सोचता हूँ, जो आदमी का वेट बहुत ज्यादा होता है वो पहले सोचता है कि मैं जिम जाऊंगा, पहले एकदम ताव में होता है, पहले 2 दिन 4 दिन एक आइडिया पे दे सिट एंड देन दे मतलब कहाँ ना कहाँ वो 10 दिन के बाद किधर ना किधर वो फेल हो जाता है। एंड that vision of losing his weight is not taken for a very long period, so there are breaks. It is bound to happen, but that does not mean that that is the only way of losing weight. Gym might not be the only way of losing weight. So जो सब कर रहे हैं वही माइंडसेट से अगर आप करो तो जरूरी नहीं आप पास हो जाओ। जो यहाँ पे शायद people might have successful companies also, successful ideas जो already forward हुए हैं, but there's not one successful method that you can follow. You have to take your own stream, you have to stay, because आपका खुद का gut, आपका खुद का understanding, जितनी डीप लर्निंग आपकी होगी उतना बेटर आपका खुद का फॉलो अप होगा। मतलब आपको खुद से बेटर कोई नहीं समझ सकता है, या आप ना किसी को फॉलो कर सकते। कॉपी कैट स्टार्टअप्स विल नॉट वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब कितना भी सक्सेसफुल आदमी हो, आप कितना उसको फॉलो करोगे? डू यू थिंक जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, पीपल लाइक दीज पीपल, दे आर जस्ट फॉलोइंग अदर पीपल? they have their own sense of understanding also, right? Their intellect is one thing, but उनका जो वो ये copycat mechanism या just doing that is not the only thing that can make you successful. So that is something that I feel you should not do. Even जैसे अमन जी बता रहे थे कि रोज नए आइडिया आते हैं, ठीक है, आइडिया एट एन आइडिएशन स्टेज इज अ डिफरेंट थिंग, बट जैसे आप उसको फॉलो करोगे आपको खुद को ही पता चलेगा कि कौन सा वाला सबसे बेटर है, कौन सा वाला वर्थ है, then you can take it. Correct. Yeah. So regarding copycat, I think what Amish is saying is थोड़ा सा मैं उसको elaborate कर देता हूँ. What he is saying कि ऐसा नहीं है कि आप कॉपी नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा टाइम कॉपी करते रह जाएंगे. Otherwise, so like you'll always try to find ki what the other person is doing. I'll do the same, and ultimately you are not that person. So there is a high chance that there will be a mismatch of process and results. Yeah. एक चीज और है, आई थिंक रिगार्डिंग मोटिवेशन, एक बार और आते हैं कि ये मोटिवेशन डाई हो जाता है, ये भी एक जनरल प्रॉब्लम है. बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी सबको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग मोटिवेट होते हैं एंड इट डाइज, डिकेज एंड ऑल. सो इस पे अतुल सर, या आई थिंक यू हैव कमेंट एंड यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस एज वेल, प्लीज. श्योर. तो मैं अपना पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ. बचपन से मैं जब बचपन में जहाँ जिस मोहल्ले में रहता था, एक मेरा पड़ोसी था, नाम भी ले सकता हूँ, चलो छोड़ देते हैं. तो वो पढ़ाई में मैं थोड़ा ठीक ठाक था, तो मेरे साथ ही सारे बगल में बैठना है, मेरे सारे नोट्स कॉपी करने, जो मैं कर रहा हूँ करूँगा, करते करते जो किया. और ऐसे नहीं एक नहीं 2-3 मेरे लाइफ में एग्जाम्पल्स हुए हैं कि एक स्कूल का भी, मैं क्लास 6 में जब स्कूल में गया तो उसका भी यही था कि जो अतुल कर रहा है तो कॉपी करो. क्योंकि उसके लिए मैं हीरो था उस जमाने में. क्लास 6 में वही मैं हीरो था उसके पहले, तो कॉपी कैट था. बट कॉपी कैट का एक प्रॉब्लम होता है कि आपने कॉपी करने में कोई गड़बड़ी नहीं है. दुनिया सारी कॉपी कैट से ही बनी है. कोई भी नया जो प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट के आगे ही बढ़ता है. जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि आईफोन ने स्मार्टफोन इन्वेंट नहीं किया ना, या कोई भी जो नया अभी कार भी आई, जनरल मोटर ने बनाया, फोर्ड ने बनाया, फिर जीएम ने बनाया, आज टेस्ला और बहुत सारी नई कार्स आ गई हैं. तो कॉपी करना इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है कि आपने किसी और के आइडिया को कॉपी किया. ठीक है, हम सारे लोग एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं. पूरे हॉलीवुड ही कॉपी कैट है, पूरा बॉलीवुड ही कॉपी कैट है, लेकिन उसके बाद आपने उसमें अपना कुछ वैल्यू ऐड किया कि नहीं. जिस दिन आपने दूसरे के आइडिया को लेकर फिर उसने आपने ऐसा वैल्यू ऐड किया कि दुनिया धीरे धीरे उसको आपका आइडिया मानने लगी, क्योंकि आपने उसमें कुछ अपना टच दिया, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दिया, तब फिर वो आपका हो गया. तब फिर आपको तो उसमें कोई खराबी नहीं है. और उसमें एक और चीज है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट के जमाने में आपने कोई भी बड़ी जैसे कि इंडिया में इनका मैं एग्जांपल देता हूँ, बप्पी लहरी बहुत अच्छे म्यूजिक मतलब कि सिंगर है. सारे गाने में उनका सारा गाना कॉपी कैट ही होता है, बट उन्होंने रिमिक्स बहुत अच्छा किया. हाँ, अब मुझे याद आ गया. तो एक बंदा है
यूएस में ही मिला था कुछ साल पहले, उसने एक वेबसाइट बनाई, आप लोग देख सकते हो, एवरीथिंग इज अ रिमिक्स। एंड व्हाट हिज बिग आइडिया इज कि दुनिया में ओरिजिनल कोई नहीं है, ना स्टीवन स्पिलबर्ग ओरिजिनल है, ना बिल गेट्स ओरिजिनल है, ना जेफ बेजोस ओरिजिनल है, कोई भी नहीं ओरिजिनल नहीं है। बट इन्होंने क्या किया कि दूसरे के पास्ट के आइडियाज को लेकर फिर से उन्होंने रिमिक्स किया। यानी रिमिक्स बहुत पॉपुलर है, आप सॉन्ग्स में भी देखते हो आजकल जो हिट गाने चल रहे रिमिक्स वाले, तो रिमिक्स करना आना चाहिए। और रिमिक्स आपका हो गया क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी लगी। आपने मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार या क्या कहते हैं माइकल जैक्सन, दुनिया के जितने सारे सिंगर्स को या जितने सारे डायरेक्टर्स को आपने कॉपी किया, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज उसको रिमिक्स का जो टच है वो आपका होना चाहिए। और जिन लोगों का भी आपने यूज किया है कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। किसी का पेटेंट है तो आप पेटेंट अब खरीदना पड़ेगा। एप्पल और अमेजन, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर इनका खर्च होता है पेटेंट खरीदने में। बहुत सारी कंपनी से लोग पेटेंट ही खरीदते हैं ताकि कोई इन पे सू नहीं करते। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी करो लेकिन याद रखो कि आप जेल नहीं जाओ क्योंकि कोई और आपको सू कर सकता है। तो वो भी एक आइडिया, कॉपी करो लेकिन एक्नॉलेज करो, क्रेडिट करो कहीं से आपने कॉपी किया है तो, और जस्ट कॉपी मत करो, कॉपी के बाद उसको आगे ले जाओ, बट टेक द आइडिया फॉरवर्ड। यस नीरज प्लीज। अतुल सर ने बहुत अच्छा बोला कॉपी के बारे में, और जेफ बेजोस को सब बहुत ओरिजिनल थिंकर बोलते हैं। जेफ बेजोस की एक कंपनी है जो कि स्पेस के लिए काम करती है, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ब्लू ओरिजिन नाम है उस कंपनी का। स्पेसएक्स से इंस्पायर्ड है वो पूरा का पूरा सेटअप। और उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में टैलेंट के लिए जो वॉर चलता है ना, वो एक देखने वाली चीज है। यूएस मार्केट में उसके बारे में जितनी बातें होती है, जितने आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो पढ़ने लायक है। मतलब वो जो मतलब हंट शुरू होती है ना आर्टिकल की, उसकी टैलेंट की, और पॉचिंग शुरू होती है एक दूसरे से, वो इस हद तक पहुंच जाती है कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, पैसे के लिए या कैसे उन लोगों को मना के अपने इधर खींचा जाए। तो बहुत सारी चीजें कॉपी होती है, लेकिन आप कितना बेटर तरीके से उसको कर पा रहे हो, उस पर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जीमेल से पहले हॉटमेल था, फेसबुक से पहले ऑरकुट था, और हर चीज से पहले कुछ ना कुछ था, लेकिन आपने कितना अच्छा उसे दोबारा से उस वर्जन को पेश किया, तो पुरानी चीजों को भूलने में लोग टाइम नहीं लगाते हैं। बात हो रही थी मेंटलिटी की, कि एक स्टार्टअप फाउंडर या को फाउंडर की मेंटलिटी क्या, मतलब किस तरह से सोचना क्या। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। अगेन मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक कोई बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, तो वो उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो अपने यहाँ पे इंडिया में होता क्या है ना, कि कुछ कुछ चीजें है ना बहुत डीपली आपको इफेक्ट कर जाती है माइंड में। किसी ने बोल दिया कुछ कि यार ऐसा बचपन से ये सुनते आए हैं, या किसी दोस्त ने ऐसा बोला था, या मुझे किसी ने ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बहुत खराब चीज होती है। तो ऐसा ही उसको किसी ने बोला हुआ था कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो आप स्टे अवे फ्रॉम टू टाइप ऑफ पीपल। वन इज कंसल्टेंट टाइप जो लोग होते हैं ना, कि मेरे से ये सर्विस ले लो, वो ले लो, या पीछे उन्होंने कुछ कंसल्टिंग की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट के रूप में काम किया है, उनसे थोड़ा दूर रहना, बच के रहना। और दूसरा एनआरआई, जो मतलब आपको दिखाएंगे कि मैं बाहर बैठा हूँ, मेरे को ज्यादा नॉलेज है और मैंने दुनिया देखी हुई है, एंड लेट मी टेल यू कि आपको क्या करना है। तो इन दो चीज लोगों से बच के रहने के लिए उसको किसी ने बोला, और उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया ये। और उसके पास फिर उसने जैसे को फाउंडर को ढूंढना शुरू किया, तो उसके पास कुछ इस तरह की जब भी वो प्रोफाइल आती है वो रिजेक्ट कर देता पहले ही। नहीं नहीं नहीं, ये तो वही क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, मेरे को तो मैंने तो सुना हुआ है ये, और इसका तो मेरे को देखना ही नहीं है। फाइनली किसी फ्रेंड के थ्रू उसके पास एक बंदा आया जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम करता था। तो एक क्राइटेरिया उसका चेक हो गया, और दूसरा वो यूएस में भी था पिछले 5 साल से। लेकिन फ्रेंड ने भेजा था, तो उसके फ्रेंड ने उसको थोड़ा पुश किया कि तेरे को एटलीस्ट इससे मिलना है। तो उसने बड़ा मन मार के, दोस्त बोल रहा है यार ये फालतू का प्रेशर हो गया, चल ठीक है, जो है मेरा क्राइटेरिया बना हुआ है, लेकिन मैं एक बार मिल लेता हूँ जाके। तो वो उस आदमी से मिला, एंड ही रियली लाइक दैट। उसने पता नहीं क्या सोच के उसको बोल दिया अपने साथ, चलो ठीक है हम साथ में काम करते हैं। और फाइनली जो वो बंदा उसको मिला, वो वन ऑफ द बेस्ट एसेट है आज के टाइम पे उसके पास, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में।
जिस तरह से उसने उसके पूरे बिजनेस में उसको साथ दिया, आगे बढ़ाया, जिस तरह के नए आइडियाज लेके वो आया, तो एक वो जो थिंकिंग और एक जो मेंटलिटी का माइंडसेट है ना, वो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को 2+2 अगर आपने 4 सीखा है अभी तक, हो सकता है कि वो 5 हो। आपको इस तरह का थोड़ा सा दिमाग में एक कहीं ना कहीं कॉर्नर में एक जगह दे के रखनी पड़ेगी कि 2+2 4 जरूर सीखा है, लेकिन मैं 5 को भी एक बार कंसीडर करूंगा। तो ये एक मेंटलिटी का मेरे मन में था कि मैं इसके बारे में थोड़ा बोलूं। दूसरा, लर्निंग ऑन द वे की बात हुई है, अमीश जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि लोग यही करते रह जाते हैं कि पहले पाइथन सीखूंगा, उसके बाद कोड लिखूंगा, तब स्टार्टअप करूंगा, या पहले मैं थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं थोड़ा काम करना शुरू करूंगा। बहुत अच्छे से कई लोगों ने एक ऐसे लेवल से स्टार्ट करके दिखाया है जहां पे उनके पास कोई इनिशियल लर्निंग नहीं थी, बस एक पैशन था और एक जो मैं शुरू में जो मैंने बोला कि एक भूख थी सीखने की, कि मैं ऑन द वे सीखूंगा और लर्निंग ऑन द वे करता जाऊंगा। कुछ ना कुछ मैं जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसमें टाइम लगाऊंगा, मैं खुद सीखूंगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही सब कुछ रेडी होगा जब तभी मैं जाके करूंगा। उस केस में आपके फेलियर के चांस ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपको जहां पे भी ये लगेगा ना कि मेरी वो प्लेबुक जो मैंने बनाई थी, मैंने पाइथन सीख के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के, ये तो वहां पे फॉलो नहीं हो रही है, आप वहां पे बहुत डिप्रेस हो जाओगे। आपको लगेगा यार मेरा तो प्लान ही फेल हो गया है, खत्म हुई बात, चलो छोड़ो, मैं नहीं कर पाऊंगा अब। तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो लर्निंग ऑन द वे का एटीट्यूड तो हमेशा ही होना चाहिए। और इससे मुझे एक और स्टोरी छोटी सी ध्यान आ गई। मैं 2-1 साल पहले की बात है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था हायरिंग के लिए। तो हमारा कुछ सेट क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि ये चाहिए हमें, ये वाला प्रोफाइल का आदमी चाहिए, उसको ये 10 चीज आनी चाहिए, और ठीक है अगर कोई इसको पास करता है तो हम उसको हायर कर लेंगे। तो मेरे पास आया, उसका जैसे 3rd राउंड था शायद, मेरे पास आया इंटरव्यू के लिए। उससे पहले 2 बंदों ने उसको आगे क्लियर करके भेजा। तो मैंने उससे 2-4 क्वेश्चन पूछे, तो मुझे बंदा थोड़ा सा ढीला लगा, लेकिन उसने जितना बताया वो बहुत अच्छा बताया, और मेरे हिसाब से ही वो अराउंड 60-70% फिटिंग इनटू द क्राइटेरिया। तो मैंने उसको मुंह पे बोल दिया कि भाई यू आर नॉट फिटिंग अप, यू आर लैकिंग समवेयर। ऐसी बातों बातों में सामने बैठ के मैंने कहा यू आर लैकिंग सम ऑफ द स्किल्स एंड सॉरी, शायद मुझे आगे कंसीडर नहीं करना चाहिए आपको। तो उसने मुझे एक चीज कही जो वो मेरे को सिखा गया उस दिन। उसने कहा सर मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मुझे 100% आएगा ना तो मेरे को भी इस जॉब में मजा नहीं आएगा और मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सिर्फ क्राइटेरिया पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो मेरी एक बात मानो, 70% का क्राइटेरिया रखो कि 70% जो इस चीज में फिट हो रहा है ना, आप उसको ले लो, क्योंकि उसके पास भी स्कोप रहेगा सीखने का, और उसके अंदर भी वो आग रहेगी कुछ नया करना है, और वो बंदा आपको ज्यादा फिट करेगा। और उसने जो ये बात सिखाई मैंने आगे काफी अप्लाई करी, एंड इट्स रियली रियली, मतलब मैं मानता हूँ कि उसने मुझे बहुत अच्छा कुछ एक ज्ञान दे दिया जो मैं आगे अप्लाई करता रहूंगा। That's it. Yeah, that's a good story. I think this story, I think you have heard how to start a startup by Ritesh Agarwal at IIM Ahmedabad. I think ये छोटी छोटी स्टोरी उसी से निकल रही है, मैंने भी देखा है वो। हाँ, कुछ वहां से भी होंगी, बहुत सारी चीजें सुनते हैं सर, तो मतलब कहीं कहीं से जुड़ जाती हैं बातें। ठीक है। हाँ, तो एक और चीज पे आते हैं फिर से मोटिवेशन वाले। तो आई थिंक लेट्स आस्क द स्टूडेंट्स फर्स्ट। अमन, व्हाट डू यू थिंक, ये मोटिवेशन वाला जो मैंने बोला कि कभी कभी लगता है कि एकदम आज तो एकदम पूरा पहाड़ तोड़ लूंगा, दूसरा दिन इंसान पड़ जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है यार, अब छोड़ो। ये जो होता है, लाइक हाउ ऑफ्टन यू और योर फ्रेंड्स और या जो भी है, यू सी दिस एंड डू यू रियली सी इट एज अ प्रॉब्लम? ये समझ, हाँ बोलो। यस, ये सर काफी बड़ा प्रॉब्लम है सर। ये तो सर शायद मोस्टली स्टूडेंट के साथ, या मेरे ख्याल से सभी के साथ या बस सभी के साथ ऐसा होता है। स्टार्टिंग में तो सर होता ही होगा, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते होंगे, बट मैंने जितना अभी तक देखा है, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा ही होता ही है। क्योंकि अब बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग हर एक चीज में प्रॉब्लम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक आपको कॉपी चाहिए, लाइक आपको लगता है कि मेरे पास कॉपी अवेलेबल नहीं हो रहा है अभी, तो आपको लगता है स्टार्टिंग हाँ कॉपी पे स्टार्टअप कर सकते हैं। आपको तकिया का पिल्लो कवर चाहिए होता है, डिजाइन चाहिए होता है, तो आपको लगता है पिल्लो कवर पे डिजाइन क्यों नहीं, पिल्लो कवर का जैसे फ्लिपकार्ट करता है, हम लोग ऑनलाइन पिल्लो कवर का स्टोर खोल लेते हैं। बट क्या ये सही में, मतलब आपको जब जाओगे उसमें तब पता चलता है नहीं यार, ये तो अगर पिल्लो कवर अगर मेरे पास आएंगे तो फिर फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब क्या करता है, उसके पास खुद ही इतना सारा चीजें
भरी पड़ा है, भरी पड़ी है, तो फिर मेरे पास क्यों लोग जाएंगे इस चीज के लिए? ठीक है, तो एक ये चीज तो काफी क्रिटिकल होता है। बट एक बार जब वही सर लोग ने कहा ना, जब एक बार स्टार्ट करते हो ना, तो फिर आपको काफी सारी प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक ही जो अपने एक थॉट बनाए, एक विजन बनाए, उसी पे आपको चलना पड़ेगा, तभी आप उस क्लियर कर पाओगे। ओके, तो एक मोटिवेशन तो काफी सारी इंपॉर्टेंट ही है, बट वही है कि आप कितना पैशनेट हो उस चीज को लेके। लाइक आपने प्रॉब्लम देखी, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम कोई भी अपने चुनी और उस पर स्टार्टअप कर दिया, क्योंकि एक और चीज ये है कि इंडिया का ये भी रेशियो स्टार्टअप का या एंटरप्रेन्योर का पूरे सर वर्ल्ड में सुनता हूं मैं कि 100 में से कोई 10 स्टार्टअप सर्वाइव करते हैं और बाकी 90 फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि क्या आपका आइडिया सही में सुटेबल या सही में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। ठीक है, आप कॉपी कैट भी कर रहे हो ना, जैसे सर लोगों ने बोला, तो आपको उसमें कुछ अलग हटना पड़ेगा, तभी आप जाके सक्सीड कर पाओगे। तो वही बात है सर, अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, आपको प्रॉब्लम सही में दिख रहा है कि काफी बड़ा प्रॉब्लम है और सही में कुछ कर सकता है, तब आप आगे जाओ और उस पर पक्का मतलब पूरे पैशनेट के साथ जाओ। सो आई थिंक और भी स्टूडेंट्स है तो और अच्छा मैं जॉब। पूछता हूँ उज्जवल, व्हाट डू यू थिंक ये मोटिवेशन जो सॉरी फिर से अनम्यूट हो गया। Yes. What do you think? Motivation का like, do you see this is a very general problem among students? Like generally, Yeah, sir. Actually, this is the main major problem. Actually, I'm inspired by Aman and you also. But सर होता क्या है, हमें मोटिवेशन मिल जाता है। लाइक मैंने रितेश अग्रवाल के जितने भी यूट्यूब पे सर के जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस है मैंने सब देखे। आई थिंक मैं क्लास 10th 11th में मैं देख रहा था, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। फिर एक हफ्ते तक मैंने कुछ स्टार्टअप्स वगैरह के पढ़ा भी, सोचा भी। देन फिर एग्जाम्स आ गए, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गई, फिर मैं भूल गया। और एक्चुअल में होता क्या है सर, हम लोग डिफीट अपनी नहीं झेल पाते हैं। मतलब कि हम अगर कुछ स्टार्ट भी किए, लाइक मैं इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ या मैं नहीं बोल पाया, तो फिर हम डर से जाते हैं, फिर हम लोग बैक हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे ये चीज। इससे हमें ओवरकम होना चाहिए। और लाइक सर मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी, लाइक अमन की और जो भी स्टूडेंट है, लाइक आप लोग हो, मतलब कि हम आपसे कंसर्न ले सकते हैं। बट आज भी मैक्सिमम लाइक इवन बिगर सिटीज में भी बच्चों को पता ही नहीं है किस रास्ते पे जाना है। लाइक कुछ होते हैं, लाइक इंजीनियर्स होते हैं, वो जाते हैं, वो अच्छे इंजीनियर होते भी हैं, फिर भी वो चले जाते हैं एमबीए में। एमबीए में करके फिर वो जॉब करने लगते हैं। इंजीनियरिंग में ही वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइक वो कोई मैकेनिकल इंजीनियर, तो उन्हें पता है कि इसके बारे में मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, मैं एमबीए के लिए नहीं बनाऊं। फिर भी जस्ट बिकॉज कि उसमें एमबीए आईएम में जाओगे, तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो चले जाते हैं। मेरा मानना है कि सर यू हैव टू बी नो द पाथ, कि तुम्हें एक्चुअल में पसंद क्या है, और तुम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो। डिफीट होते हो तो फिर भी बस एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं किसी से कंसर्न लूंगा। सर प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट या कोई भी है ज्यादा कंसर्न लेता नहीं है। लाइक मेंटोर से वो अपनी फैमिली में ही कंसर्न लेगा। लाइक कोई जॉब करने वाला है तो बहुत होशियार कोई है तो बस उससे कंसर्न लेगा। अब उससे क्या पता भाई जॉब वो किया है, अब तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम एक बिजनेसमैन, लाइक मुझे बिजनेस करना है तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा ना कि सर कैसे करना है। अगर मुझे बहुत रईस बनना है तो रईस के पास जाना पड़ेगा, तो वो मिलता नहीं है। तो बच्चों के अंदर होता क्या है कि वो वैसे ही बन जाते हैं कि जैसे इन्वायरमेंट होता है कि हमें नहीं है, और फिर डिफीट आ रहे हैं तो होने दो, अब चलो अपनी नॉर्मल लाइफ। ठीक है, let's hear from Rajiv Gupta. Rajiv, are you? Yeah, what do you think? ये motivation जो fluctuation, is it? Have you seen a lot of it? You or surrounding? What do you think? Rajiv, are you here? Okay. Anyway, Mr. Karthike, do you have a comment on this motivation fluctuation? So I think I have to add some point that it's a fluctuation. सर ये जो है ना सर, I think एक चीज जो है वो किया जा सकता है। लाइक मैंने ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योर्स को सुना है, लाइक तो उनमें स्टार्टिंग्स होता है ना कि आपको एक बड़ा चीज करना है ना, तो उसके पहले आप छोटी छोटी चीजें करते रहोगे ना एंटरप्रेन्योरशिप में, तब आई थिंक ये फ्लक्चुएशन हैंडल किया जा सकता है। राइट,
लाइक जैसे मैंने संदीप माहेश्वरी को सुना है तो काफी बार उन्होंने बताया, ठीक है, लाइक जब वो बच्चे थे तब उनको लगता था कि चलो गोंद बेचना है, ठीक है, मतलब तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाया पर गोंद बेचना स्टार्ट कर दिया, उसी समय खुद से बनाया, खुद से फिर बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम उनको कुछ लगा कि हाँ चलो मतलब फोटो खींचने वाले बनते हैं, मतलब तो फोटो के लिए खींचते रहते हैं। मतलब एक चीज है कि अगर आपको कुछ लगे ना कि हाँ इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी है तो आप उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है, भले ही वो बाद में फेल हो जाए या फिर कुछ हो, पर आपको एक वो हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या स्ट्रांग बन सकता हूँ। और काफी सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं ऐसा कि जो ऐसा कर लेता है ना तो उसको फिर बाद में स्टार्टअप या फिर जो बड़ी चीजें होती है, जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो फिर आपको उतना डर नहीं रहता उसका, फिर मोटिवेशन के फ्लक्चुएशन फिर काफी कम हो जाता है, आई थिंक सो। Okay. Yes, Mr. Karthik, please, you are continuing. Yeah, hi. So, first thing first, मुझसे पहले जिन्होंने बोला, I think I would pretty much agree with him. A lot of times, you know, like as a student पे अगर बोलूँ तो lot of times people of my age वो भीड़ में घुस जाते हैं and basically they go into a field जहाँ उनका कोई लंबा चौड़ा interest नहीं होता. So यहाँ पे I'll tell you an example about a very good friend of mine. So when I was doing my graduation, that fellow हम मिले उससे and he was basically 3 years elder to us. And बात करी तो पता चला that he went to US to do his engineering and second third year कभी था and of course उसको interest था नहीं but घर वाले चाहते थे कि engineering करे तो second third year में he left his engineering and he wanted to get into management basically. So वो हमारे साथ आ गया BBA करने के लिए from the first year. So a lot of times I remember going to his house and उसके घर वाले भी बहुत criticize करते थे. Of course they were supportive with his decision finally, but फिर भी बहुत criticize किया करते थे that you know about engineering में बहुत scope and all that. But he was then pretty much motivated and आज की date में I remember when he started his job, he was earning very less as compared to what he would have earned after doing an engineering from US. But eventually it turns out that आज की date में बंदा like currently he's performing very well, he's earning very well, he's quite satisfied. उससे कई बार बात करो तो of course he's quite clear that if I would have been an engineer right now then might be I would have been at a stage that you know मैं तब कमा लेता. But then again as talking about motivation he said कि यार हाँ but motivation is actually something which would in the long run would have been a very big problem. So this is actually a very big lesson जो he taught me actually कि it doesn't matter, of course money is quite secondary until and unless आपके mind में you are very focused कि यार बस पैसा ही कमाना है, by hook or by crook it doesn't matter मैं क्या काम कर रहा हूँ, in that case it's fine. But I believe हमारी generation में ऐसा है नहीं. A lot of people work satisfaction comes into the place. That's my point on it. Okay. दीपक जी आपका कुछ बोलना है आपको इस पे ये मोटिवेशन के बारे में? मोटिवेशन सर इसमें अभी हो रहा है कि जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनमें होता है ये है कि अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि बस जॉब करना है, कैंपस प्लेसमेंट ले लेना है, तो इसमें क्या होता है कि जो उनका एनवायरनमेंट जिस टाइप का मिलता है उसी टाइप में वो लोग ढल जाते हैं. और अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 में 1 या 2 ही हैं जो कि एंटरप्रेन्योर और जो है स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हैं. तो सोचते हैं उनको जो है उस क्योंकि अगर एक जॉब सीकर होते हैं और एक जॉब क्रिएटर होते हैं, तो अभी जो माहौल चल रहा है कि कहीं आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक कर रही है. कर रहे हैं तो हम भी करेंगे. अभी ट्राई कीजिए बोलना का, आई थिंक मे बी बेटर. हेलो. हाँ अभी बताइए. तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है अपना जो है लाइफ डिसाइड कर ले रहे हैं. उनको खुद का जो क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका पावर है, क्या उनके अंदर है, इसका जो है यूज नहीं कर पा रहे हैं. और जो भी उनको एनवायरनमेंट मिल रहा है उस एनवायरनमेंट चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, अगर टेक्निकल कॉलेज है कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही कर मोटिवेट टीचर भी करते हैं कि चलो जो है तुम कैंपस प्लेसमेंट ले लो. जो कैंपस प्लेसमेंट ले लिया उसको बहुत शाबाशी दिया जाता है. इसलिए क्या होता है कि सारे स्टूडेंट का ये माइंड सेट हो जाता है कि कैंपस प्लेसमेंट हो गया, कैपजेमिनी में हो गया, जनरल मोटर्स में हो गया, बहुत अच्छे पैकेज पे चले गए तो बहुत अच्छे हमें कहा जाएगा जो है. इसलिए जो है उनका ये सब जो एंटरप्रेन्योर का जो है ये बहुत कम लोग कर पा रहे हैं और उनका जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढाल ले रहे हैं. ट्रेंड बन गया है, मतलब ऐसा ही होता आया है, चलता आया है,
माँ बाप भी जी ऐसे ही बोल देते हैं पूरा, मतलब 90% लोग यही बोलते हैं, 95%। तो यस कहीं सर ना कहीं लोगों को लगता है कि इतने लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। जी ये आई थिंक ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम, फॉलोइंग द ट्रेंड। एंड आई थिंक इसमें श्यामा सर का बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आई थिंक उन्होंने जो बोला था कूदी मारने वाला, कि जंप, आपको जंप करना है, पैराशूट फिर बनाने के बाद में सोचना है। यस सर, आप बताइए और ऐड कीजिए प्लीज थोड़ा सा। Yeah. So my question to Ujjwal, your name is Ujjwal, right? यस सर, यस सर। बहुत अच्छा आपने बताया, एक्चुअली इट्स गुड या टू नो। एक्चुअली सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर, ये मैं हुआ मेरे साथ यही था। 11th मैं 10th पास किया तो मेरे स्टीरियोटाइप फैमिली थी, वो यही बोलती थी कि तुम्हें साइंस लेना है और तुम्हें इंजीनियर बनना है। फिर मैंने साइंस सीए वो कॉमर्स ले लिया तो मुझे सीए बनना है, फिर तुम्हें सीएफए करना है। तो मैं पूरी लाइफ यही करता रह गया। फिर बाद में मुझे इंटरेस्ट आया कि भाई मुझे एमबीए करना है, तो मैंने सब राइट। कुछ छोड़ा। फिर एमबीए की प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ। फिर मुझे सो एंटरप्रेन्योरशिप में तो बचपन ही से इंटरेस्ट था, तो मैं सो थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ। राइट, so it was your story. That's या nice. And एक्चुअली या सर, you are courageous that you are talking in this forum. Okay, this is the या right forum to talk, because at your age, I'm assuming that you are much younger than me. At your age, I never इट्स mastered माय this ऑनर courage सर, to इट्स ऑल अबाउट माय ऑनर। speak to the people, and neither I got a forum. Okay, but in my life, it has happened very peculiar, in a peculiar way. I will not go into my personal story, but ये जो चीजें है ना, ये I struggled with this as well. It's not that I have not struggled, and still now I'm doing it. तो जैसे ये फ्लक्चुएशन ऑफ मोटिवेशन का, जैसे विशाल ने भी बात कर रहे थे। सो यू सी, अभी जैसे हम लोग ने ये चालू किया बात, आर वी रिमेनिंग मोटिवेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इन द सेम वे, इवन टू लिसन? आर वी? Nobody can constantly remain motivated. Okay, so better not to break your heart with that. जैसे motivation is a matter of emotion, and emotion means emotion. That emotion will be always in the motion. So as long as you are aware that what is going on within you, आज problem क्या होता है? Because we are so busy in a day-to-day struggle and life, we forget our this part, and which is the larger part. And I came to know about this quite late in my life, 5 years back, when I met someone in Singapore, and he was a neuro-linguistic programming expert. Okay, and so somehow I became a very good friend with him, and I was liking his talks and all. So then I discovered that ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी, that you are not being able to stick to the things which you are liking, and you are not being able to convey to your parents. It's a problem of communications. It is the convictions in you. Means if you are convinced that I will do this thing, no parents can stop you. So it is neither to blame you or neither to blame your parents or to the environment. कोई फायदा नहीं है इसमें। तो अभी जो है ना, better to be aware about that. आपका values क्या है? What are your main value system? Like somebody likes money, somebody likes to travel, somebody likes to read or write. So ये सब जो basic values है, if you are building your work around that, then that work will never look like a work. सुबह से आप उठोगे उसमें लग जाओगे. And on top of that, one has to find out the higher purpose of life. Like maybe I'm sounding little high at this moment, I don't know. But the higher purpose of life, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ikigai and all those things, right? ये बहुत जरूरी है. If you see that those things drive you most, अगर आपको parents को help करना है, that is your higher purpose. कि भाई डैड ने मेरे को अभी इतना साल से मेहनत करके मेरे को पढ़ाया लिखाया, now I will help my dad. This is your higher purpose.
तो अगर उसमें अगर आप कन्विंस हो गए एंड यू वांट टू सक्सीड, तो आप करते चले जाओगे. And once you test a little of success in your small steps, that brings to you more success, and you remain constantly motivated. That's the one of the way. It doesn't mean that in the morning and till evening you will remain throughout motivated like that. It doesn't happen. But overall, you are focused on the goal you have set, the purpose of your life, your value system. If you are revolving on that, I think you can remain motivated for a longer period of time and in a very easy manner. It is very, I'm telling it in a very simplistic way. So I can take you through these journeys, okay? I have a lot of people, and whoever you guys are there, because this is the thing I learned after a long time. Means I thought that I should have learned it 15 or 20 years back. I just learned it 5 years back. So that's why I keep on sharing this to every young people, because that is so important. Because this is the way you are communicating to yourself. You know, आज mind में दो चीज होता है. One is conscious mind and another is the subconscious mind. जैसे हम लोग अभी ये बातचीत कर रहे हैं, this is our conscious mind. जैसे मैंने भी बात कर रहा हूँ आपसे, I'm talking from my conscious mind. But क्या होता है, subconscious mind बहुत powerful होता है. And that subconscious mind we are not aware at all. जैसे आपने किसी ने अभी बात कर रहे थे, those were limiting beliefs. Neeraj was talking, right? We just make ourselves like that. We think ourselves that नहीं, आपने जो अभी स्टोरी बता रहे थे जो कि NRI और उसको नहीं लेना है कंसल्टेंट को, you know, so he has created a limiting belief around himself. किसी ने बता दिया कि भाई ये गरम चीज है, छूना मत, बचपन में बता दिया, तो आप when you are adult still you are, you know, scared to touch that, but that is for the good reason. But the similar way, किसी ने आपको बता दिया अरे तेरे से ये काम होगा नहीं, बस वो आपने पकड़ लिया, and that subconscious mind keeps on conditioning you, and it conditions you so hard that without knowing it you just avoid that path, whoever has told you. So these sort of things can be removed, these sort of things can be, you know, overcome. This is the neuro-linguistic programming, that is the you know, result I have achieved. And I understand that Bill Gates, your Barack Obama, everybody were follower of this neuro-linguistic programming, और बहुत बड़े-बड़े लोग थे, तो it doesn't matter. So coming back to your question, so all these fears and whatever stage you are, the life you are, still it is, I am a strong believer that you can remain motivated and you can achieve much bigger things. Yeah. So this NLP is kind of to make this simpler, inception, planting an idea in the mind. Can we say call it inception? एक सिनेमा था inception, उसमें है ना पूरा वो idea है ना, they planted some things in their mind, kind of changed their mind. Can we say? एक और मूवी भी आई थी सीक्रेट, सिमिलर आइडिया पे. और एक चीज मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि लाइफ इज अ जर्नी. इसमें बहुत सारे आपको स्टॉप्स और ब्रेक्स और डिटोर्स लेने पड़ेंगे. इट्स नॉट कि एक सिंगल चीज एक स्ट्रेट लाइन पे जाना है. जितना ज्यादा आपका रास्ता घुमावदार होगा, सर्कुलर होगा, ऊपर नीचे होगा ना, उतने ज्यादा आपके एक्सपीरियंसेस थोड़े डीप रहेंगे और लाइफ भी काफी रिच रहेगा. कि आपने देखा है, उतार भी देखा है, चढ़ाव भी देखा है, सक्सेस भी देखा है, फेलियर भी देखा है. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद तो व्यू दिखता है सबको, बट चढ़ाई में ही ज्यादातर जो राइडर्स होते हैं, दे एंजॉय द राइड, एंड दैट इज माय लेसन टू इट कि आप राइड को एंजॉय करो, जर्नी को एंजॉय करो. डोंट वेट फॉर द डेस्टिनेशन, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट होगा. यस मिस्टर नीरज, हाँ आप बताइए. सर दो तीन चीजों के बारे में बात हुई है, मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूंगा. एक बात हुई है कंडीशनिंग को लेके, श्यामा सर ने बहुत अच्छे से उसको बताया है. इसमें एक बहुत पुरानी कहानी है जो नॉर्मली बताई जाती है कि हाथी का जो छोटा बच्चा होता है ना, केरला साइड में ये सब बहुत चलता है कि उसको एक छोटे से मतलब जैसे धरती में गाड़ के, खूंटा बोलते हैं उसको, उससे बांध दिया जाता है. लेकिन उसमें उस टाइम स्ट्रेंथ कम होती है,
तो वो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कोशिश करता है बचपन में कि मैं इससे अलग होके थोड़ा घूमूं फिरूं, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उस समय स्ट्रेंथ उतनी ही होती है कि वो जो उन्होंने लगा रखा है वो उसको उखाड़ नहीं सकता। लेकिन उसी सेम जो उन्होंने उसके लिए बचपन में गाड़ा था ना, वो एक हाथी अपनी पूरी उम्र उसी से बंध के काट देता है, जबकि वो बड़ा होके अराउंड 20-30% उसके अंदर स्ट्रेंथ, 20-30 टाइम्स उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है और उसको एक झटके में उखाड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी उसको कोशिश नहीं करता उखाड़ने की, क्योंकि उसको कंडीशनिंग हो चुकी है, उसके अंदर एक बिलीफ है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैंने बचपन से इसमें ट्राई की है, मैं नहीं कर पाता था और अब ये कभी नहीं होने वाला है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड फैक्ट है ये एलिफेंट्स के लिए। तो ये कंडीशनिंग है, ये कंडीशनिंग नॉट ओनली इन एनिमल्स, ये ह्यूमन माइंड में भी होती है। और सर ने बहुत ही अच्छा एनएलपी वगैरह के बारे में जो बातें की हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं आई, आई एम वेरी इंटरेस्टेड अगर सर इस बारे में आगे अभी कभी हमें इस यात्रा पे, इस जर्नी पे ले जा सकें तो। बट कंडीशनिंग होती है ह्यूमन माइंड में, डेफिनेटली बहुत अच्छे से होती है। दूसरा एक मोटिवेशन के लिए बात हुई, तो मोटिवेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग फैक्टर हो सकता है। अब मतलब कौन किसके लिए क्या काम करेगा, वो हर आदमी के अपने मेंटल सेटअप पे, अपनी सोच पे, अपनी अपब्रिंगिंग पे, अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। बहुत लोगों के लिए मनी बहुत कॉमन फैक्टर होता है, जो सबके लिए थोड़ा बहुत काम करता ही है। दूसरा फैक्टर मतलब जैसे कई लोगों ने बोला फ्रेंड्स, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उससे काफी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। कईयों के लिए फेलियर बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन के लिए, कि मैं हार कैसे गया, मुझे तो जीतना ही है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मेरे को जीत के दिखाना है, किसी को प्रूव करना है लाइफ में। तो वो फेलियर जब आता है तो मेरे पास एक उसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे साथ दो भाई थे, लाइक जब हम 6th में थे तो उनका बड़ा भाई 8th में था, और जो वो छोटे वाला था वो मेरी क्लास में था। बड़े वाला पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट था, स्कूल का टॉपर था, हर कोई जानता था, और मतलब एक नामी पर्सनालिटी था स्कूल में। और छोटे वाला उसका उल्टा था, जो मेरे साथ था, जो मेरी क्लास में था, कि वो पढ़ने में एकदम जीरो था, और मतलब जीरो तो नहीं लेकिन 50-60% टाइप था, लेकिन शरारती बहुत ज्यादा था, दूसरों को पीटने में, खुद कहीं पे लड़ाइयों में बहुत आगे था, हर रोज पेरेंट्स को स्कूल में आना पड़ता था, उस टाइप का था। समहाउ क्या हुआ कि जब हम अराउंड 8th में आए तो उसका बड़ा भाई 10th में था, उसने स्कूल को टॉप किया और उसके बाद उसने आईआईटी के लिए कोचिंग वोचिंग और ये सब शुरू कर दिया। ये मतलब बातें 2001 के आसपास की बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत उस टाइम ये फिट जी और ये सब चलता था। तो बड़े भाई का आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया, और जब वो 11th-12th में आईआईटी की जब कोचिंग ले रहा था तो घर में थोड़ा माहौल बदलने लगा। तो उसने पता नहीं क्या रंग बदला उस माहौल ने, और उसने जो देख के, और मतलब भाई को देख के और खुद अपने फेलियर से कुछ सीख के, बड़ा भाई आईआईटी दिल्ली में गया, और हम सब देखते ही रह गए कि वो सब क्या बदलाव हुआ, और छोटे भाई का ऑल इंडिया 17th रैंक आया, एंड ही ऑल्सो वेंट टू आईआईटी दिल्ली। अभी थोड़ा सा अलग ही रास्ते पे है वो आजकल, मतलब मेरे थोड़े कम टच में है, थोड़े बहुत दिन नौकरी करके उसने पता नहीं उसका मतलब किस तरह से माइंड दोबारा से टर्न हुआ, वेंट इनटू साइंसेज, और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, और उसके बाद पीएचडी इन मैथमेटिक्स, और पता नहीं वहाँ पे कुछ और ज्यादा ही, फिर कुछ क्या हुआ, फिर फोटोग्राफ, और अभी पता नहीं क्या चल रहा है। बट स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड, और वो एक फेलियर से, और जो वो वाली कहानी है जो मैं मोटिवेशन की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, काफी लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, दूसरा नहीं है, चौथा पॉइंट है, सॉरी, आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है लाइफ में, कि मेरे को कोई जान नहीं रहा है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, मैं एक दबा हुआ आदमी हूँ। उस चक्कर में वो है ना, रिकॉग्निशन के लिए, मतलब कई बार लोग है ना मेहनत कर जाते हैं, और वो मोटिवेट कर जाता है कि मेरे को कोई रिकॉग्नाइज करे कि मैं भी कुछ हूँ, मैं इस समाज का वो एक हिस्सा हूँ जो कुछ कर सकता हूँ। तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अगेन स्टेटस के लिए बहुत लोग, मतलब सक्सेस के बाद जो स्टेटस जो सोसाइटी में, अच्छा शर्मा जी का बेटा वो, उसको, वो तो अलग ही चीज है भाई। तो वो जो स्टेटस जो मिलता है ना सक्सेस के बाद, उसके लिए बहुत लोग, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है।
कुछ लोगों के लिए पावर बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार इस ग्रुप में डिस्कस हुआ है कि बिहार में बहुत काम करता है पावर फैक्टर, कि लीडर बन जाऊं मैं किसी तरह, बस पावर आ जाए हाथ में। तो नॉट ओनली इन बिहार में कहूँगा, कहीं ना कहीं ये होता है। पूरे इंडिया में मैंने देखा है, हरियाणा में भी बहुत देखा है, पावर के लिए बहुत मरते हैं लोग, और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है कि कुछ करने के लिए, कि मेरे को वो पावर मिलेगी अगर मैं कुछ बन गया तो। आज के टाइम पे जिस चीज की जरूरत है और जो बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है थैंकफुली, वो है क्यूरियोसिटी, चैलेंज। और इस चीज की बहुत जरूरत है। अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, LWT विशाल जी का जो मतलब स्टार्टअप और ये स्टार्टअप के अराउंड की जो कहानियां हैं, अगर किसी को अगर क्यूरियोसिटी अगर मोटिवेट करती है, अगर उसको चैलेंजिंग कुछ चीजें जो उसको पसंद हैं, तो डेफिनेटली ही कैन लीव, ही कैन टेक अ स्टेप अहेड। तो ये हम जो हमने जहाँ से डिस्कशन शुरू किया था कि क्या क्या क्वालिटी है, उन सब चीजों से भी ये जो जितने पॉइंट मैंने बोले इनको रिलेट कर सकते हैं। तो एक लास्ट में अतुल सर कुछ बोल रहे थे, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मेरे को उस टाइम कुछ पॉइंट ध्यान आ रहा था उस पे भी। रिवेंज इज अ बिग मोटिवेटर, अभी लिखा है उन्होंने। हाँ हाँ, तो उसके एक कहानी सुनाता हूँ सर। मैं आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड इन माई हाउस। मेरे फादर सबसे छोटे हैं अपने भाइयों में, और फिर मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ घर में। तो मतलब पूरी ज्वाइंट फैमिली थी उस जमाने में, और सबसे छोटा मतलब सबसे प्रोटेक्टेड। 7 भाई हैं हम, मतलब कजन्स मिला के। तो एकदम पैम्पर्ड चाइल्ड, सबसे प्यार से सारे बड़े भाई, कहीं पे कुछ हो जाए बचपन में भाई आ जाएगा, मैं अपने भाई को बुला लूंगा। तो उस टाइप की सारी स्टोरी रही। और एक लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आया। मैं 6th स्टैंडर्ड में सैनिक स्कूल में चला गया। पेरेंट्स ने कुछ सोचा, मेरा मतलब टेस्ट वेस्ट दिलवाए, मेरा क्लियर हो गया सब। पढ़ाई में मैं शुरू से थोड़ा ठीक था, तो सैनिक स्कूल में चला गया। और वहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, कि वहाँ पे कोई भाई नहीं खड़ा है साथ में। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं ना, वो चिढ़ाते हैं कुछ कुछ बातों पे, कुछ बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे ही कोई मेरे को परेशान कर रहा था। बिल्कुल शुरू शुरू की बात है, नया नया स्कूल में गया था, हॉस्टल में वैसे ही शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी। हर रोज शाम को बैठ के 2 घंटे तक रोता था मम्मी को याद करके। तो मैंने पकड़ के, एक चिढ़ा रहा था, मैंने उसको पीट दिया, और अच्छे से पीट दिया। थोड़ा शरीर से मैं ठीक था शुरू से ही, लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर बाद उसके साथ 6-7 लड़के आए, और उन्होंने पकड़ के मुझे धुना, अच्छे से धुना। तो मेरे को समझ में आया कि भाइयों के अलावा भी कुछ एक और फैक्टर है यूनिटी का, जो कि समाज में काम करता है। वो मैंने सीखा वहां पे, जब मैं नीचे गिर के मार खा रहा था, मैं सोच रहा था। तो फिर मैंने वो सारी, जो कहते हैं ना कि आदमी जो गिर के सीखता है, जो मतलब जो अपने आप ऊपर बीतती है उससे जो सीखता है, वो बहुत अच्छी लर्निंग होती है। और मतलब ये लर्निंग है ना, आप जब तक उस एनवायरनमेंट में बच्चे को नहीं डालोगे, या आप घर पे बिठा के तो डेफिनेटली कभी नहीं सिखा सकते। कुछ चीजें हैं ऐसी जो मैंने हॉस्टल लाइफ में सीखी हैं। तो मुझे समझ आया कि अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करना है, या मुझे इस एनवायरनमेंट में अपने आप को जमाना है ना, तो आई नीड टू हैव अ सर्कल। तब तक 2-3 महीने हो चुके थे स्कूल में, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, कोई खास फ्रेंड भी नहीं बनाया था। देन आई गॉट दैट आइडिया कि हाँ, मुझे भी एक सोशल सर्कल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, मेरे पास भी एक ग्रुप होना चाहिए। और वो सारा डायनेमिक्स मेरे को समझ आना शुरू हुआ। तो आपकी लाइफ में कौन सी क्या चीज किस तरह से होगी, आपको कई बार अपने ऊपर बीतने के बाद ही समझ आती है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जिनके ऊपर मैं बोलना चाह रहा था। ये सही बात है। आई थिंक एक और चीज आपने जो बोला, लाइक कि बचपन खूटा वाला बात। सो यू नो व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, he or she is limitless, then all the limits are, you know, taught to him or her. So yes Ramesh, आप कुछ कहना चाहते हैं please? So I think there are few more things like something like curiosity, yeah, social cause, which affects a founder कि रीजन कि उसको क्यों करना चाहिए, कि इसमें से क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, again, I have not studied Mr. Mark Zuckerberg to that extent, but the guy who's done the social revolution, social connect, at least in a very better way. There was before, uske pehle aur kuch वगैरह थे, but this guy does not have too many friends from what I understand.
I see that he is technology wise he is very good. मेरे को दोस्त है जो फेसबुक में काम करते हैं, so they say that उनका खुद का डेस्क है, ओपन प्लेटफॉर्म पे है वगैरह है, but he does not socialize the way normal people do. So that उनकी क्वालिटी कुछ और है और उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोशल नेटवर्क किया हुआ है, उन्होंने वो सॉल्व करने के लिए कुछ किया हुआ है. फॉर एग्जांपल लेट्स से आज पोल्यूशन दिल्ली में, इंडिया में, बैंगलोर में बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम है, बट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन देयर माइट बी पीपल हु माइट गेट emotionally attached to it and then say that maybe I should do something about it. And because they're emotionally attached, there is a very strong reason that these people might succeed in a very good way. They might fail also, they might succeed also. Again, there are too many reasons or things. But one of the things, if you get attached to your topic, तो जैसे एक एग्जांपल अभी आया था कि आप आपके रूटीन में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड कर लो जो, तो वो वर्क नहीं रहेगा. मतलब इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन आप बहुत चीजों को सेपरेट कर रहे हो, देन यू आर एबल टू फोकस ऑन योर वर्क. सो लॉट ऑफ दीस थिंग्स कम टुगेदर. Again, curiosity or that kind of social attachment, if it's there, those things help a founder. Yes, Atul sir. तो मैं एक पॉइंट एग्जांपल देना चाहता था, पर्सनल एग्जांपल है. रिवेंज भी बहुत बड़ा ड्राइवर होता है कि दिखाना है. जैसे कि आई थिंक नीरज ने दिखाया कि भाई का जो छोटा भाई दोस्त था पढ़ाई में मतलब कि ज्यादा अच्छा था, या जो भी था, राइवलरी था, सिबलिंग राइवलरी बहुत ड्राइव करता है. मेरा एक रिवेंज का ड्राइव है जो कि मुझे आज भी मोटिवेट कर रहा है. 2011 लगभग 9 साल हो गए. आज भी मैं उसी हर दिन उठता हूँ तो सोचता हूँ उस बारे में. उतना अब नहीं रहा, थोड़ा सा धीरे धीरे भूल गया हूँ. 2011-12 में मैंने पटना में फर्स्ट पटना मैराथन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी, और फुल मैराथन 42 किलोमीटर. उसके लिए मैंने 4 महीने की छुट्टी लेकर न्यूयॉर्क से 4 महीने के लिए बिहार में सेटल हो गया था. सब कुछ हुआ, बट अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कुछ लफड़ा किया, डेट चेंज करवाया 1 वीक. उसके बाद नीतीश कुमार ने उसको होने नहीं दिया. नीतीश कुमार के में ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार के घर पे उनके ऑफिशियल लंच पे 100 इयर्स ऑफ बिहार सेलिब्रेशन बन रहा था, थाली फेंक के निकल के आया. तो वो मुझे आज भी याद है. और उसके बाद लौटने के बाद मैं 10 साल से ग्रीन कार्ड पे था यूएस में. उसके बाद मैंने सिटीजनशिप ले लिया. मैं सिटीजनशिप 5 साल पहले ले सकता था, नहीं लिया कि नहीं अब मैं सिटीजन बन के जाऊंगा बिहार. क्यों? क्योंकि अभी बताना है. वो बिहारी लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है, हरियाणा में भी होता है थोड़ा बहुत, कि बदले की भावना. तो मेरे में बदले की भावना है, बट अगेन उस बदले की भावना नेगेटिव डायरेक्शन की जगह पॉजिटिव डायरेक्शन में था कि मैं करके दिखाऊंगा, तुमको या तो जेल भेजूंगा या मैं तुमको हटा के किसी तुम्हारे जगह किसी बेटर आदमी को लाऊंगा. तो आज इवन तो मैं यहाँ कैलिफोर्निया में बैठा हुआ हूँ, बट बिहार इलेक्शन में बिहार में बहुत क्लोजली इन्वॉल्व. तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के या आरएसएस के, उन सबसे टच में है. बहुत सारे लोग मुझे पिंग भी करते हैं कि अतुल जी एनआरआई लोग का एक टीम बनाइए कीजिए, तो सबसे टच हूँ. बट उसके पीछे एक ड्राइवर रिवेंज है, बट द अदर मेजर थिंग इज टू शो कि नहीं ऐसे हो सकता है. अगर सरकार आप जो चला रहे हैं ना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, मेरा उस समय मोटिवेशन था मैराथन का, मैं बिहार को इन्वेस्टमेंट मैप पे लाना चाहता था. तो मेरे कनेक्शन थे थोड़े, मैं नारायण मूर्ति, केवी कामत, बहुत बड़े बड़े लोगों को बिहार के लिए उनको इनवाइट कर चुका. मैं सबको पर्सनली जानता था, आईएम कनेक्शन के थ्रू भी वो. तो सब लोगों को मैं बिहार में लाना चाहता था कि एज ए इन्वेस्टर. बट जब मुझे उस घटना के बाद मुझे पता चला कि जब तक आपके पास पावर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो आप गलत कास्ट से हो या गलत बैकग्राउंड से हो या जिस कारण से भी, तो सामने वाला आपको नहीं बढ़ने देंगे, करने नहीं देंगे. इवन तो मैं सोशल वर्क कर रहा था, उन्हीं का फायदा होता, बट उनके दिमाग में थोड़ा फियर क्रिएट हो गया कि क्यों इतना कर रहा है, मीडिया में इतना आ गया, ये हो गया. तो मैंने ये प्रण लिया कि अब मैं दोबारा जाऊंगा और कुछ करूंगा सोशल वर्क. बिहार में नहीं करूंगा जब तक कि मैं सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को, आईएएस भी है, इन तीनों को जेल चले जाए या ऊपर चले जाए तो कुछ करूंगा. तब तक मैं ऑफलाइन ही करूंगा. तो मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप चलाता हूँ, नॉन प्रॉफिट ग्रुप चलाता हूँ. पड़ेगा कि फिजिकल हमारा एक ऑफिस भी नहीं खुलेगा पटना या बिहार में, क्योंकि आई डोंट फील सेफ विद द पावर्स. और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को भी पर्सनली जानता हूँ, मुझे पता है कि कौन पैसा खाता कौन नहीं. तो ये जो 2-3 इसमें थ्रेड्स है. नंबर 1 की रिवेंज, मैं उसको रिडेम्पशन बोलूंगा. एक शशांक रिडेम्पशन बहुत बड़ी फिल्म है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसको
उसको रिवेंज भी ले सकते हो, या दूसरा आप उसको अच्छा करके या एक छोटी लाइन की जब बड़ा लाइन खींच करके सामने वाले को दिखा दो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बहुत सारे लोगों के लिए। दूसरा जो सबसे आसान मोटिवेशन होता है, मैं बोलता हूँ बार बार, कि रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पूरे दुनिया में सबको मोटिवेट करता है। आप किसी को भी मोटिवेट करना हो तो एम्प्लॉयर्स भी यही करते हैं, स्टार्टअप्स भी करते हैं कि इक्विटी दे दिया या तुमको स्टॉक दे दिया या बोनस दे दिया, तो लोग एम्प्लॉय ज्यादा काम करते हैं। तो वो तो रिवार्ड पार्ट हो गया। उसी का दूसरा पार्ट है पनिशमेंट, कि आपने परफॉर्म नहीं किया। सेल्स में होता है कि आपने परफॉर्म नहीं किया, 3 महीने में आपका सेल्स का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत जल्दी सेल्स में या स्टार्टअप वर्ल्ड में हो जाता है कि जल्दी आपसे टाटा बाय बाय कर लेंगे। आपके इन्वेस्टर भी आपसे सवाल पूछेंगे और कि बाबू आपसे नहीं होने वाला, ये चल नहीं रहा आपसे। अब या तो वो एक्सटर्नल लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे, वीसीज खुद आपके कंपनी में आके आपके बोर्ड पे आ जाएंगे, बोर्ड पे आते ही हैं लेकिन आपके बोर्ड पे डे टू डे इंटरफेरेंस करेंगे, या आपके जगह पे किसी और को बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बात किया था, आई थिंक ये किसी ने बात किया था कि जो फाउंडर है राहुल यादव, जो जिसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था रेंटल वाला, मैं नाम भूल रहा हूँ, Housing.com, the bad boy of Indian startup is known as. तो Housing.com के जो फाउंडर राहुल यादव है ना, तो राहुल यादव को सिकोया के जो वन ऑफ द वीसीज, उनका भी नाम आई थिंक शैलेंद्र सिंह, बहुत हाई फाई हैं, बहुत अच्छे सिकोया के पार्टनर। बट शैलेंद्र सिंह और राहुल यादव का थोड़ा चला नहीं। राहुल यादव तो फ्रेश आईआईटी में था, एकदम यंग ब्लड, और एंटरप्रेन्योर्स थोड़े होते हैं सन की टाइप, और वीसी थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। वीसी का ईगोज बहुत होता है और उनके पास क्योंकि पैसा है, सक्सेस है, तो दे वुड लाइक टू कंट्रोल द स्टार्टअप्स। तो बहुत सारे स्टार्टअप लोग वीसी से दूर भागते हैं कि वीसी आएगा तो फिर मेरी कंपनी में $1 मिलियन देगा या जितना भी देगा, बट साथ में डे टू डे पे वो माइक्रो मैनेज करेगा, तो वो भी एक फैक्टर्स है। तो मैंने बहुत सारे थ्रेड बोले, बट रिवॉर्ड रिकॉग्निशन एंड फियर, ये दोनों बहुत फैक्टर काम करते हैं। फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ राइवल्स, कि दूसरा कोई और हमसे बड़ा बना लेगा, तो ये सारे मोटिवेटर्स भी बहुत काम करते हैं आपके सक्सेस के लिए। और आपको ज्यादा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना आपका इनर ड्राइव, जब आप सेल्फ ड्रिवन हो ना, तो आपको दुनिया से ना परमिशन की जरूरत होती है ना दुनिया से ताली बजाने की जरूरत है। आप मेरे एक दोस्त है जो मुझसे चिढ़ता भी है, बहुत बड़े कंपनी का, यूनिवर्सल मैकान का, वहाँ मलेशिया सिंगापुर में सीईओ था, अभी कैंस फेस्टिवल वगैरह में अवार्ड फंक्शन में जाता है। पर उसने मुझे मेरे बारे में बताया था कि अतुल, तुम ना इंट्रोवर्ट हो ना तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम इंट्रावर्ट हो। यानी कि तुमको अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो तो यू वोंट केयर कि ऑडियंस में कोई है कि नहीं, कोई ताली बजाएगी नहीं, तुम अपने से खुद से परफॉर्म करोगे और खुद से खुश रहोगे। वो एक क्वालिटी बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी होती है, तो इसलिए वो उनको ये फियर, सक्सेस और फेलियर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पर्सनल एग्जांपल। ओके, ठीक है, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो विल कंटिन्यू द डिस्कशन टुमारो with more ingredients. ठीक है, गुड नाइट। सॉरी मेरे को थोड़ा जाना पड़ता है। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। या कल कंटिन्यू करेंगे। इट वाज अ लवली डिस्कशन। या Mr. Vishal. Yes, Mr. Karthik. So whenever comfortable, I was thinking कि if possible तो एक दिन can we do a discussion on business ethics or something like that? Whenever sure, we comfortable. can continue on ethics tomorrow itself for a startup, business startup, whatever. Yeah. Sure. Correct. Okay. Good night, everyone. Yeah, good night. Thank you. Thank you. Good night. Good night.